Good evening, students. This is Ranjan. Once again welcomes you. Students, as we are studying quadratic equation and we are in the middle of quadratic equation, we studied what is quadratic equation, what are the methods to solve quadratic equation, then we study method of completion of square, and after that we had solved questions related to quadratic formula. Okay, we had completed the quadratic formula in the previous class. Okay, so students, today we have to study discriminant and nature of roots. So students, what is discriminant? Suppose this listen carefully. Suppose this is a quadratic equation and you have to ask find the nature of roots without solving the equation. आपको ये बताना है इसके रूट्स का मतलब समझ रहे हो, जो सॉल्यूशंस आते हैं, बेसिकली टू सॉल्यूशंस आते हैं, व्हाट विल बी देयर नेचर. स्टूडेंट्स, नेचर का मतलब रैशनल नंबर होगा, इरैशनल होगा, इक्वल होगा, ये सारी बातें विदाउट सॉल्विंग. आपने इसको सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर आ गया स्टूडेंट सपोज 2 and 3, देन यू विल से दैट दिस इज रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर होगा बच्चों, अलग अलग. 2 and 3 डिफरेंट इंटीजर्स है. ओके, वी हैव सॉल्व. आप इसका सॉल्व किया, इसके आंसर्स 2, 3 आए और आपने बता दिया दिस इज रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, बट स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव टू आस्क find the nature of root of this equation, find the nature of root of this equation by without solving, then we go through discriminant. We have to learn here what is discriminant, and with the help of discriminant how we can find the nature of roots. Very important part is students, one questions basically asked in your council exam, and this is very important topic, so you have to listen very carefully. Let us move students. Suppose ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c equals 0. You know what is this? This is general form of quadratic equation in variable 1 or in one variable where a, b, c are real numbers. Now students, discriminant is given by the formula b square minus 4ac. ओके, आप b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन. क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट सभी फाइंड कर लोगे. ए बी सी आप लोगों को पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म. ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी यहाँ रियल नंबर है, कुछ लोग इसको वेरिएबल सपोज कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल और वेरिएबल एक्स है. अब स्टूडेंट्स, एक्स को छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स मिलेंगे दे आर सपोज्ड टू बी रियल नंबर. तो कांस्टेंट टर्म का मतलब सी हो जाएगा जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो. तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं तो दे हैव अ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म. वेरी सिंपल, टर्म हैविंग नो वेरिएबल, जिसमें आपको उस इक्वेशन का वेरिएबल ना मिले, दैट इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, so students, if ax square plus bx plus c equals 0 be quadratic equation in one variable, then discriminant is given by formula b square minus 4ac where a, b, c are real numbers and a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is coefficient of c is constant term. Okay, now we had learned how to find discriminant. Then after knowing how to find the discriminant, then how will we decide the nature of root? कैसे हम पता करेंगे कि रूट रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि इक्वल होगा, कैसे? सो स्टूडेंट्स, अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिए, देन वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों डी से डिनोट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट इज जनरली डिनोटेड बाय अल्फाबेट डी. ओके, नाउ स्टूडेंट, सपोज आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड किए और ये 0 से ग्रेटर आ गया,
पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक, या पॉजिटिव 0 से ग्रेटर हो गया, ठीक। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन स्टूडेंट्स टू कंडीशंस मिलेंगे। तो आप अभी अपने एग्जाम 10th लेवल से इतना याद रखोगे, d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, real, distinct and rational when discriminant is greater than 0. Okay, first of all you have to find how discriminant is calculated. This is given by the formula b square minus 4ac. After knowing the discriminant then you can predict the nature of root without solving it. First condition, if the discriminant is greater than 0 then रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा बच्चों, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो d इज ग्रेटर देन 0, बट और आप इसको डीप में पढ़ोगे तो टू कंडीशंस होंगे स्टूडेंट्स, याद रखना है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एट दैट केस रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। But if d is not a perfect square, then roots are irrational and conjugate pairs. Conjugate pairs क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है, discriminant is greater than 0, then roots are real and distinct. अगर क्वेश्चन में पूछता है if the roots of given equations are real and distinct, it means discriminant is greater than 0. क्लियर, ठीक। सेकंड को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। And if discriminant is exactly 0, most important है स्टूडेंट्स, if discriminant is exactly 0 मतलब b square minus 4ac exactly 0 है, then students roots are real and equal। याद रखना है, roots are real and equal or simply equal। Whenever it is asked in questions if roots are equal, it means d is 0, discriminant is 0। If it is asked that roots are real and equal, both real and equal, not only real, when it is asked that roots are real and equal, it means discriminant is 0, b square minus 4ac is 0. Third condition students, if discriminant is less than 0, negative, then we can say roots are imaginary, that is complex with non-zero imaginary part। कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग स्टूडेंट समझेंगे। इमेजिनरी आपको याद रखना है, रूट वाले पोर्शन होंगे, ठीक है। रूट में जैसे सपोज दैट आपने सॉल्व किया, d की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 3 आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 7 आ गया, तो उस केस में स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। And students, if d is greater than or equal 0, then roots are real, real and equal नहीं, only real। If it is asked that roots are real, it means discriminant is greater than or equal to 0। बहुत ध्यान देना, d is greater than 0, roots are real, distinct and rational, and if d is greater than or equal 0, then roots are real only, ठीक। तो these are the four conditions by which you can predict the nature of root without solving them। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 याद रखना है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी बच्चों, आपके कंपटीशन ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्दर ज़्यादा से एडवांस सीखने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लॉजिक है, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझना है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो स्टूडेंट्स ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जनरल फॉर्म है। तो दिस ए बी एंड सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड पी प्लस आई क्यूब। आई स्टूडेंट्स जनरली आयोटा, आप लोग 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से सुनना है। तो आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, एंड आई की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स -√1। आप लोग देखे हो रूट में नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते, उतने पे ही छोड़ देते हैं, इरैशनल मान के, इमेजिनरी मान के, ठीक। तो उसी नेगेटिव रूट में नेगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में सपोज दैट √-3 लिखा है तो आप इतने पे आंसर छोड़ देते हो। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसको हम लोग
ध्यान देना है, 3 इंटू -1 लिख सकते हैं और -1 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है आई स्क्वायर, तो इसको हम लोग √3i लिख सकते हैं। तो i का मतलब √-1 है, आपको याद रखना है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब आई स्क्वायर होगा और √-1 मतलब आई स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो p प्लस आई क्यू मतलब स्टूडेंट्स यहाँ i है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव रूट में रहा होगा, ठीक। तो p प्लस आई क्यू इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस आई क्यू। ओके स्टूडेंट, सपोज लिखा है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2 प्लस 3i, ठीक, या 2 प्लस √3i, तो स्टूडेंट सेकंड क्या होगा 2 माइनस √3i, सिर्फ याद रखना है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इज कॉन्जुगेट। आप लोग 9th में रैशनलाइजेशन पढ़ा था ना, 2 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन 2 माइनस √3, तो रैशनलाइजेशन भी कॉन्जुगेट करते थे मल्टीप्लाई, तो वही याद रखना है। आई क्या है, आयोटा है, आई की वैल्यू -√1, ठीक है। तो जब रूट माइनस में होता है स्टूडेंट्स, तो माइनस हटा के हम लोग आई लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना, इफ वन रूट इज 2 प्लस √3i, देन अनदर वन भी 2 माइनस √3i, ठीक। कई ऐसे केसेस मिलते हैं। इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड P प्लस √q इज वन रूट, ये √q क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी शर्ट है, एनी शर्ट, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस √q। स्टूडेंट सपोज इट इज गिवन दैट 2 प्लस √3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो सेकेंड रूट मस्ट बी 2 माइनस √3, ठीक। दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आप आगे क्वेश्चंस हम लोग एडवांस के कुछ सॉल्व करेंगे, तो हमेशा याद रखना है इफ a प्लस √b और p प्लस √q इज वन रूट, दैट डेफिनेटली अनदर रूट बी p माइनस √q। क्लियर? तो ये एक आयोटा और ये दूसरी बात याद रखनी है। स्टूडेंट्स, इफ a इज 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज यूनिटी, b and c are integers, then roots of quadratic equations are rational numbers, then these roots be integers। ओके तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल लॉजिक है। सपोज जब भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था x² प्लस 5x प्लस 6, सॉरी x² माइनस 5x प्लस 6, आप लोग सॉल्व किए तो इसका आंसर क्या आया था, 2 3 आया था। तो वही कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी है और b और c मतलब x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स भी इंटीजर्स है, तो इसके आंसर्स स्टूडेंट्स रैशनल होंगे और रैशनल के साथ साथ इंटीजर्स होंगे। तो देखो ये 2 और 3 रैशनल नंबर भी है और दे आर इंटीजर्स आल्सो, ठीक। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सपोज लिखा हुआ है x² प्लस 12x प्लस 20, ओके। अब आपको सॉल्व करना है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, x² का कोफिशिएंट 1 है, b और c क्या है, इंटीजर्स है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशंस होगा इंटीजर्स ही आएंगे, ठीक। तो ये सिंपल है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक में नहीं मिलेगा तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिटिल डिफिकल्ट, बट वंस यू लर्न इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आसानी से आप लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स याद रखना है अब कंक्लूजन। बेसिकली आपको ये 3 बातें याद रखनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट आपको ये 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रैशनल भी जोड़ सकते हो, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, ओके। when d is greater than 0 then roots are real and unequal। वाइस वर्सा भी बोला जा सकता है, इफ इट इज आस्क्ड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। और स्टूडेंट्स उस समय इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, -b प्लस माइनस √d। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, ध्यान से समझना, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, d के प्लेस पे b² माइनस 4ac। अब स्टूडेंट्स जब d ग्रेटर देन 0 है
इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, अभी तो आपको एग्जाम में जो सॉल्व करना है वर्किंग दिखाना है, बट अगर आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व कर रहे हो, फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते हो, तो सीधा रूट्स क्या होंगे, d इज ग्रेटर देन 0, तो abc की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, वही आएगा। ठीक है, इफ d इज इक्वल्स टू 0, अब स्टूडेंट्स ये केस ध्यान से समझना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स d की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे 0 आएगा, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a। ओके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यू हैव टू आस्क दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, व्हाट विल बी रूट्स, माइनस बी अपॉन 2a कर लो। ठीक, तो इसमें हमेशा स्टूडेंट्स दोनों आंसर सेम आते हैं। सपोज आपने सिंप्लीफाई किया x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स x माइनस 2 का मतलब क्या, x माइनस 2, तो आप 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू 2, यहाँ भी 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू 2, तो इसका मतलब रूट्स रियल भी है और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका हमेशा 0 आएगा। एंड इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके हमेशा नॉन रियल रूट्स रहेंगे, आयोटा हो सकता है, शर्ट में हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसके सॉल्यूशंस हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। ठीक, ग्राफ की बात किया जाए बच्चों, क्लियर हो गया इतना? तो कई तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा अपने थिंकिंग को ब्रॉड करना है। सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ठीक, तो आप समझ गए d की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया ग्रेटर देन 0, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, बिना सॉल्व किए बता सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स इंटीजर्स है, मतलब इसके सॉल्यूशंस भी इंटीजर्स आएंगे। ठीक, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है, फिर बहुत अच्छा लगता है क्वाड्रेटिक में। जो स्टूडेंट्स बेसिक्स से नहीं पढ़े हैं, हर चीज़ आसान नहीं होती है बच्चों, एक अच्छा टॉपिक है क्वाड्रेटिक। 11th में कई चैप्टर्स क्वाड्रेटिक के पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, तो जो 11th मैथ से पढ़ना चाहते हैं, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार, लेक्चर 1 से, लाइव लेक्चर 1 से नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर 1 से आपको देखना होगा, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपको d इज ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल 0 याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया, d ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। d is less than 0, roots are imaginary. d equals 0, roots are real and equal और roots are equal. Roots are equal कह रहा है तो भी d equals 0. And d is greater than or equal 0, it means roots are only real. Okay? अब स्टूडेंट्स ग्राफ से भी कुछ आइडिया लगाते हैं। स्टूडेंट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन स्टूडेंट्स इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल टच, सिर्फ एक सोल्यूशन आया ना, -b/2a माइनस b/2a, तो ग्राफ इसका सिर्फ x एक्सिस को टच करेगा, एक पॉइंट पे, वन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करेगा। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स x एक्सिस पे टच नहीं करेगा, कहीं पे भी हो सकता है x एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसी वजह से हम लोग इसके रूट्स नन लिखे थे। ठीक, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ग्राफ से भी आप बता सकते हो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है कि एग्जैक्टली 0 है कि लेस देन 0 है। समझ में आया? ध्यान से हमारी बात सुननी है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन ग्राफ विल कट्स x एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, and if discriminant is exactly 0, then graph just touches the x axis at 1 point, and discriminant is less than 0, then its graph will not intersect x axis. ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप सभी लोग ध्यान से समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली 2 पार्ट, जिसको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो सिर्फ 3 बातें, रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, रूट्स रियल कब है और इमेजिनरी कब है, ठीक। और बाकी सारी बातें बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन का यूज करना होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखते हैं, लेट अस सी क्वेश्चंस। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो फिर से वही बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन वी हैव टू चेक दैट इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही मैंने एम्फेसिस दिया था बच्चों, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे, द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज दैट यू हैव टू चेक दैट the given equation is in its general form or not. If it is general form, then proceed further, and if it is not in general form, then first of all by simplification convert it into general form. General form में students ये already arranged है, ax square plus bx plus c equals 0। कंपेयर करोगे बच्चों, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। You know that discriminant is given by formula b square minus 4ac। स्टूडेंट्स -6 है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 36 और -24। स्टूडेंट्स 12 आया डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको देखना है 0 के ग्रेटर है कि 0 है कि 0 से लेस है, तो 12 0 से ग्रेटर है, सिंस d is greater than 0, so roots are real and distinct। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लास्ट में एडवांस में उसको सीखेंगे, ठीक। अभी सिर्फ ग्रेटर देन 0 समझना है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं आपको अभी नहीं सोचना है, ठीक। अब फिर से स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो अरेंज्ड इन जनरल फॉर्म। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4। We know that discriminant is given by the formula b square minus 4ac। Students, b is 4 under root 3 negative, a is 3 and c is 4। 4√3 को सॉल्व कर लोगे, स्क्वायर ऑफ माइनस इज प्लस, स्क्वायर ऑफ 4 is 16 into 3 is 48, this is 4 4 is 16, 3 is 48। Since d is exactly 0, then students roots are real and equal, और simply equal लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स रूट्स आर रियल, यहाँ पे सिर्फ हमको नेचर डिस्कस करना था, वी हैव टू जस्ट डिस्कस द नेचर हियर, एंड इफ इट इज आस्क्ड फाइंड द रूट्स ऑल्सो, तो आप आसानी से, रियल के केस में बच्चों रूट क्या होता है, -b/2 a, x का कोफिशिएंट -4√3 है, 2 a का कोफिशिएंट 3 है, तो ये स्टूडेंट्स 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 3 होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और या आप मिडिल टर्म स्प्लिटेड भी कर लोगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ से आपको डेवलप करना है, ठीक। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट से नेचर पता करना होगा, आप d की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर कंपेयर कर लोगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में जनरली डिस्क्रिमिनेंट नहीं फाइंड करने को आएगा, बेसिक बातें थी, यू हैव टू इनकलकेट दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एग्जाम्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट्स अभी अब सीख गए होंगे, सिर्फ आपको अभी तक इतनी बात याद रखनी थी, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड कर लें, क्वेश्चंस एकेडमिक सॉल्व करने के पर्पज से। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। स्टूडेंट्स इन द इक्वेशन, ध्यान से सुनना है, लेसन वेरी केयरफुली। In the equation we have to prove that the given equations have real and distinct roots for all the values of a। Students, equation is x square plus ax minus 4 equals 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स x a की वैल्यू 1, b का वैल्यू a और c की वैल्यू -4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू a स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4, a स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स, अब ये तो हमको पता नहीं चल रहा है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे ए वेरिएबल है, ध्यान से समझना है, प्रूफ करना है रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ याद रखना है सिंस d इज ग्रेटर देन 0। क्यों स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है? तो देखो a की कोई भी वैल्यू आप फाइंड करोगे, a की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 16 है तो इसका जो भी a की वैल्यू होगी हमेशा प्लस आएगा। a की वैल्यू -2, -3, -7, -1.7, वॉट एवर यू पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 16 ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहां से हम लोग प्रूफ कर देंगे सिंस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 a स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज, so discriminant is greater than 0, hence roots are real and distinct। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान था, बस यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे, लॉजिक लगाना था। आपको पता होना चाहिए कोई भी नेगेटिव नंबर होगा आप उसका स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली। Some students are not forwarding their homework regularly. Again and again I request him, please be regular, start your studies, don't be careless। आगे देखते हैं। If the equation has two equal roots, then find k। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और p और b, कोई भी वेरिएबल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला काम स्टूडेंट्स, वी हैव टू अरेंज इन जनरल फॉर्म, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। नाउ इट इज इन जनरल फॉर्म। कंपेयर किया बच्चों, coefficient of x square is a, here k, coefficient of x is b, here -2k, and constant term is 6। now students, condition is already given, we have not to prove। यहाँ पे हमको शो नहीं करना है कि रूट्स रियल और इक्वल शो करो, it is already given in the question, it is said that roots are real and equal, you have to apply this condition and further solve। now students, so since roots are real and equal, sorry only equal दिया है, तो roots are equal, it means students d is equals to 0, b square minus 4ac equals 0, b students -2k है, a is k and c is 6, 4k square minus 24k, k कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज 4k minus 24, k equals 0, 4k minus 24 equals 0। so स्टूडेंट्स 4k equals 24, k की वैल्यू आ जाएगा 6। so स्टूडेंट्स k is 0 and 6, 0 स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, so the value of k is just a minute, यहाँ के ओके k is 6 हो जाएगा। सॉल्विंग 4k इज कॉमन, 4k कॉमन ले सकते थे स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना, हम लोग डायरेक्ट 4k कॉमन ले सकते थे, बाकी आंसर यही आएगा। 4k इज कॉमन, सो दिस इज k minus 6, 4k equals 0, then k is equals to 0, and k minus 6 equals 0, then k equals 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स। 0 पुट करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। स्टूडेंट्स इक्वल के केस में जनरली दोनों इक्वल आते हैं, ठीक, साइन भी सेम होता है, -b/2 है, -b/2 है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं,
तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स, रियल होंगे और इक्वल होंगे। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। कंपेयर किया बच्चों, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। नाउ सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, it means discriminant is 0, means b square minus 4ac is 0। b की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 है, इक्वल 0। तो दिस इज k स्क्वायर माइनस 24, k की वैल्यू स्टूडेंट्स k स्क्वायर 24, देन k इज प्लस माइनस अंडर रूट 24 और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो व्हाट आर टू रूट्स, प्लस 2 under root 6 and minus 2 under root 6. Okay, here it is already told that two real and equal roots. Since roots are real and equal, that's why discriminant is 0. फिर वैल्यू सिंप्लीफाई किया बच्चों और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक, तो k की वैल्यू हम लोग 2 रूट 6 रखेंगे तो भी रियल एंड इक्वल होगा और माइनस 2 रूट 6 लिखेंगे तो भी। ओके, आप लोग नोट कर लो। Some students are facing problems in method of completion of square. First of all, you have to watch the video again. Live classes थी, थोड़ा voice की भी problem थी. Again and again I was saying please be careful. This is very important. Its derivation is little complicated. तो आप लोग एक बार फिर से उसको ट्राई करके जैसे जैसे मेथड्स बताए वैसे वैसे सॉल्व करने हैं। ठीक, एक बार और ट्राई करना है और उसके बाद में फिर से जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कुछ जो होमवर्क में दिया है उसको फिर से डिस्कस करूंगा, दैट विल बी क्लियर्ड। कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है तो उसको आपको क्विट नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई 1 or 2 more times. अगेन इफ यू हैव प्रॉब्लम देन आस्क मी एंड मेक इट क्लियर। उसको क्विट नहीं करना है बच्चों। आपको ये मानना है कि ये चीज़ अगर मैं क्लियर कर लिया, ये सीख गया, देन there will be huge increase in our mental level. That is very very important. Okay, next, find the value of k if equation has equal roots. So students, equation is बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। First of all you have to check what general form equal 0. स्टूडेंट्स x स्क्वायर दो जगह है तो जनरल फॉर्म में पहले कर लो, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन x टर्म लिखेंगे, देन कांस्टेंट प्लस 1। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस 1 सेपरेट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म होगा तो हम इसको लास्ट में लाए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिखा। अब एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन करते हैं तो दिस इज के प्लस 1 बचा एंड दिस इज minus 2k minus 1x plus 1. Now students, it is in general form, ax square plus bx plus c equals 0. x square का कोफिशिएंट a, k plus 1. x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स b, here with साइन लिखना है, x को छोड़ के सभी उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है सभी को पता होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म इज 1. Now students, since roots are equal, it means discriminant is equals to 0, b square minus 4ac is equals to 0. b is students minus 2k minus 1 whole square minus 4, a is k plus 1 and c is 1. Students, माइनस का स्क्वायर दिस इज माइनस 2 है बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 होल स्क्वायर 4k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा एक्सपेंशन से पहले आप कॉमन देख लो, कैलकुलेशन कम होगा। 4 इज कॉमन, नाउ दिस इज एक्सपेंशन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 कॉमन हो चुका है स्टूडेंट्स, माइनस के माइनस 1। ओके,
जब भी आप एक्सपेंशन करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देख लो। कैलकुलेशन से स्टूडेंट्स थोड़ा लेंदी होते हैं तो बेसिकली 4 कॉमन हो जाता है। 0/4 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, दिस इज k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल्स 0। k माइनस 3 स्टूडेंट्स k इक्वल्स 0 और k माइनस 3 इक्वल्स 0, देन k इक्वल्स 3, then the values of k base students 0 and 3। ओके, ध्यान देना है फिर से। कंडीशन वाज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर टर्म साथ लिखा, -2k - 1x कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर कॉमन k + 1, कंपेयर किया a की वैल्यू k + 1, दिस इज -2k - 1, कांस्टेंट टर्म इज 1। Condition is given that roots are equal, so discriminant be 0, b square - 4ac is 0। b की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट किया, 4ac भी सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। -2 का स्क्वायर +4, k - 1 होल स्क्वायर -4k + 1 है स्टूडेंट्स। 4 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab -k ± -1। स्टूडेंट 0/4 0 हो जाएगा, +1 - 1 कैंसिल, k स्क्वायर -2k - k -3k, k कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, k -3, k की वैल्यू आया 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बाद में आप लोग नोट करना, या आप लोग समझ गए हो तो फर्दर आप लोग क्वेश्चन नोट किया करो, उसके तुरंत बाद आप लोग फिर से सॉल्व किया करो। दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। जितने मैंने क्वेश्चंस बता रहे आप क्वेश्चंस लिख लो, मेरे समझाने के टाइम आप लोग उसको समझो, ध्यान से समझो, और जैसे ही वीडियो लेक्चर देख लो आप फिर से उसको सॉल्व करो। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन आप लोग उसको फिर से वहाँ पे बैक जाकर देख सकते हो वीडियो में। सॉल्व कर लिया तो आप लोग तुरंत सीख जाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx plus c square minus a square has equal roots, and then we have to prove this। ध्यान देना है बच्चों। I think it is in general form, ax square plus bx plus c। ओके स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल नहीं है इसमें, दिस इज कांस्टेंट टर्म। x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 + m², x का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स 2mc, and constant term is c square minus a square। Now it is given that roots are equal, it means b square minus 4ac must be equal to 0। b is given student 2mc, a की वैल्यू है बच्चों 1 + m² and c is c square minus a square। अब कैलकुलेशन का खेल है बच्चों, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 2 का स्क्वायर 4, m² c²। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × c² c², 1 × -a² -a², m² × c² प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a² m²। ओके, अगेन 4 इज कॉमन, सो स्टूडेंट्स टेकिंग 4 एज अ कॉमन, this is m² c² minus c² minus minus plus a² minus m² c² plus a² m²। ओके, देखो बच्चों 4 कॉमन है तो -c² माइनस माइनस प्लस a² माइनस प्लस माइनस m² c² माइनस माइनस प्लस a² m²। 4 0/4 0 हो जाएगा बच्चों, -m² c² प्लस c² m²। व्हाट इज रेस्ट स्टूडेंट्स? अब प्रूफ क्या करना है, c² सेपरेट है तो आप c² को सेपरेट कर लिया,
a square is common, then this is 1 plus m square. This is the required answer. Okay, please note it. Some students are not watching videos regularly, they skip the days. So students, you are increasing your burden. Daily you are getting videos of biology, physics, chemistry, computer science also. So you have to be punctual, regular. You have to set a timetable and work through the timetable. There is no substitute of hard work. You have to do work. If you want to complete your work, if you want to complete your dream, then you have to work. No substitute of hard work. Again and again I am saying. जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं. फिर से स्टार्ट करना है. मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कोशिश करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे. वन डे यू विल definitely learn. Let us see once again students. Compare किया ABC में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों. Now it is given that roots are equal. Then b square minus 4ac equals 0. Values substitute किया. Then 2 4 हो गया, m square c square. Students 1 into c square 1 into minus a square m square c square plus minus a square m square. Okay, now taking 4 as a common, ये m square c square था बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सारे साइन ऑपोजिट, 0/4 0. दिस इज प्रूफ. क्या करना था, c स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैड लर्न डिस्क्रिमिनेंट. व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? To find the nature of roots without actually solving it. और conditions क्या क्या है? D is greater than 0, roots are real, equal and distinct. And D is greater than less than 0, roots are imaginary. D is exactly 0, roots are equal. And D is greater than or equal 0, roots are real. आप लोग इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. You will get PDF in Telegram. Okay. एक क्लास में और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बच्चों. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हो जाएगा, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे. तो वर्ड प्रॉब्लम्स के कई केसेस है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे. रूट्स कैसे बिना सॉल्व किए फाइंड कर लें. ठीक है, रूट्स में रिलेशंस क्या होते हैं, रूट्स और जीरोस में रिलेशंस क्या होते हैं, ढेर सारी बातें हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों. तो 3-4 क्लासेस में कई एडवांस बातें सीखेंगे. आप लोग इतना अच्छे से क्लियर करोगे तभी समझ में आएगा बच्चों. आई होप यू विल कंप्लीट इट. वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. ठीक, ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे. तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स. थैंक यू.